सो अगर हम IBD की बात करें, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं. एक तो इस क्रॉन्स एंड एक इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो द वे टू थिंक अबाउट दिस इज़ think of Crohn's and ulcerative colitis as two different children. ठीक है, जो Crohn's है, this is a cranky child, a creepy child and a crooked child. Now, considering कि ये qualities हैं, Crohn's से सी ये negative qualities हैं, so let's see what some of those qualities would be. One, that it skips around, it skips classes, and it'll go anywhere in the GI tract. Like, it'll skip classes and go anywhere in the entire city. Then it burrows deep, which means it gets involved in deep shit, which means कि transmural है. Fist punches through bowel wall, transmural, यही वाली बात हो जाती है. And all the C's, अगर C की बात हम करें, तो it causes caseating granuloma. And because it's like creepy, crooked, it doesn't ask for permission. So ASCA antibodies are involved. Compare this with ulcerative colitis, which is a uniform and tidy child, जो कि gets their work done on time, will start at the rectum, ठीक है, and then go all the way to the rest of the bowel, and it moves in order, and it only grazes the surface. It doesn't get involved in deep shit. लेकिन ये है कि when it does, even जब वो surface graze करता है, तो it causes bleeding, right? But it doesn't get involved in deep shit, only surface level पे. So that being said, let's see a comparative analysis between ulcerative and Crohn's disease, क्योंकि this is super high yield. Now, Crohn's, we said, was like crooked, creepy. It'll go anywhere. It'll skip classes and go anywhere and down. So it'll go from anywhere from the mouth to anus. But इसमें जो main जगह affected होगी, that is the terminal ileum. तो जो symptoms आएंगे वो भी terminal ileum में जो चीज़ें absorb हो रही होंगी उनकी deficiencies की वजह से या malabsorption की वजह से हो रही होंगी. तो just remember it's the terminal ileum. लेकिन ulcerative colitis, it starts at the rectum, extends proximally, and only the colon is involved. तो इसमें small bowel involvement नहीं है. तो another way to remember is this: UC, OC, only colon is involved. ठीक है, and it starts at the rectum. Now the pattern, we said, it skips classes, skip lesions. ठीक है, but this is continuous involvement. C for ये हमने OC पढ़ा था और यहाँ पे CO है. So CO is continuous involvement. ठीक है, from the rectum. इसमें skip करके नहीं आ रही होती चीज़ें. ठीक है, once again speaks to the kind of kid it is. It's tidy, it's uniform. Rectal involvement often spared. क्यों? क्योंकि skip करते हो सकता है कि वो rectum को spare कर दे. लेकिन ulcerative colitis में start ही rectum से होता है, तो it is always involved. Now the depth of inflammation, we said कि Crohn's disease is transmural, full thickness damage है. और इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, बिकॉज ये फुल डैमेज कॉज कर रहा होता है. स्ट्रक्चर्स, फिस्टुलाज, एब्सेस बन रहा होता है. स्ट्रक्चर्स इज़ लाइक अगर कोलोन में इस तरह स्ट्रक्चर्स बन जाएं, फिस्टुलाज यानी एबनॉर्मल एक कनेक्शन बन जाए, या एब्सेस है, एब्सेस यू ऑलरेडी नो इज़ लाइक अगर एक्यूमुलेशन पस वगैरह की हो जाए. Ulcerative colitis only grazes the surface, तो it only involves the mucosa and submucosa. ठीक है, पर फिस्टुलाज एंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमने कहा ट्रांसम्यूरल डिजीज़ है, तो इसमें अगर रेयर है. ना ग्रैन्यूलोमास हमने क्या कहा था कि C क्रुकेड है, क्रीपी है, तो इसमें फिर हम सॉरी इट वाज नॉन केसिएटिंग ग्रैन्यूलोमा, नॉट केसिएटिंग, लेकिन चलो C से हम याद रख लेते हैं, नॉट ऑलवेज सीन. बट दिस इज़ नॉट टिपिकल, वी डोंट यूजुअली सी ग्रैन्यूलोमास हियर. ठीक है, in Crohn's disease, in ulcerative colitis. अगर हम PSC इन्वॉल्वमेंट देखें, तो PSC एसोसिएशन इसमें हमारे पास रेयर है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस. However, it's strongly associated with ulcerative colitis. And इसको I think like you know the way to remember this is कि because ulcerative colitis में C end में आता है, तो PSC is also comes at the end, तो PSC association इसके साथ है and not with Crohn's disease, right? Because it's not part of an abbreviation. This is an abbreviation. तो जो antibodies हैं हमने कहा था, it really rarely asks for permission. So Saccharomyces cerevisiae antibodies, and then this it does ask for permission. So P for permission and ANCA. ठीक है? This is ASCA. This is P for permission. अच्छा, क्योर विद सर्जरी, इट्स नॉट क्यूरेटिव. वाई? बिकॉज ये स्किप आप कहाँ की सर्जरी करेंगे, कहीं और हो जाएगा. लेकिन ये क्यूरेटिव है विद कोलेक्टमी. सो इफ़ यू रिमूव दैट पार्ट ऑफ द कोलोन, देन इट विल सॉल्व द डिजीज़ ऑब्वियसली. फिर पेरी एनल डिजीज़ इसमें कॉमन है, इसमें रेयर है. नाउ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फीचर्स इसमें जो हमारे पास क्रॉन्स है, इट कैन कॉज आर्थराइटिस, यूवियाइटिस, एरिथीमा नोड्यूसम. तो इसमें हमारे पास
we have three associated factors with Crohn's. ठीक है. So we said it's crooked, it's creepy, it's causing a lot of trouble. तो not only is causing trouble in the colon, लेकिन वो और भी जगहों में जाके इन्फ्लेमेशन और ये प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है. एक जॉइंट्स में जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो रहा है, एक आइज़ में जिसकी वजह से यूवियाइटिस हो रहा है, और एक स्किन में जिसकी वजह से एरिथेमा नोड्यूसम हो रहा है. सो जस्ट थिंक when you think of a person, think कि उसकी आँखों, उसकी स्किन और उसके joints. ठीक है. सो all of these places that you can sort of make notes on: eyes, skin and joints. अच्छा, कोलोनोस्कोपी फाइंडिंग्स जो हैं, क्योंकि स्किप करके लीजन्स हैं, तो वो कॉबल स्टोन अपीयरेंस होगी कि कहीं पे है, कहीं पे है, कहीं पे है, और इन जगहों पे नहीं है. तो व्हाट डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक अ कॉबल स्टोन अपीयरेंस, राइट? आफ्टर अल्सर्स, ठीक है, एंड स्किप लीजन्स. लेकिन इसमें क्योंकि हमने कहा था कि अगर ये दिस इज़ द सर्फेस एंड आई एम लुकिंग यहाँ ऊपर से एडेड, और सारा सर्फेस अफेक्ट हो रहा है, तो इट्स कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन, इट्स फ्राइबल म्यूकोजा के सारा कुछ फ्राई हो गया है. ठीक है. एंड देन इसमें स्यूडोपॉलिप्स भी बन जाते हैं. ना कॉम्प्लिकेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं. इसमें फिस्टुलास, एब्सेस, स्ट्रक्चर्स वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस. लेकिन मैल न्यूट्रिशन भी इन्वॉल्व है. क्यों? क्योंकि इसमें टर्मिनल इलियम, ठीक है, टर्मिनल इलियम की इन्वॉल्वमेंट है. एंड देन इसमें टॉक्सिक मेगा कोलोन है, या कोलोन कैंसर हो जाता है. ठीक है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग इज़ लेस कॉमन क्योंकि स्किप करके है. ठीक है. ये लेकिन फ्रीक्वेंट है क्योंकि ये बिल्कुल एंड में भी आ रहा होता है ना. इट्स एट द वेरी एंड. तो इट्स लाइक व्हाट यू विल एक्सक्रीट. सो इट्स ब्लडी डायरिया इज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. वैसे भी फ्रॉम द नेम इट सॉर्ट ऑफ इज विजिबल लाइक अल्सरेशन, राइट? अल्सरेशन वुड innately cause bleeding. So if we talk about diarrhea, this is often non-bloody, typically bloody with mucus. ये यही वाली बात हो गई. एब्डोमिनल पेन. अब इलियम हमें पता है कि जब हम अगर हम इस तरह वो बनाए, तो इलियम का जो पेन है वो राइट साइड पे फील होगा, और जो यहाँ का पेन है रेक्टम के टू द रेस्ट ऑफ द कोलोन, ये होगा लेफ्ट साइड पे. सो यही वाली चीज़ है. अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ इन द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, राइट के इलियाइटिस अगर है. तो अच्छा, वेट लॉस कॉमन क्यों है इसमें? क्योंकि मैल अब्जॉर्प्शन हो जाएगी. ठीक है. मैल अब्जॉर्प्शन जब होगी तो वेट लॉस हो जाएगा. इसमें लेस कॉमन है. मैल अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंट है. और कौन सी चीज़ें इलियम में मेनली अब्जॉर्ब हो रही होती हैं? आयरन एंड B12. तो इनकी डिफिशेंसीज हो जाएंगी, लेकिन इसमें रेयर है. तो स्मोकिंग वर्सन्स डिजीज़, लेकिन इन दिस इट माइट हैव अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट. नाउ हाउ डू यू रिमेंबर दिस? वी सेड कि द किड दैट इज़ क्रॉन्स इज़ अ रियली टेरेबल चाइल्ड. तो इमेजिन कि अगर वो ऊपर से स्मोकिंग भी शुरू कर ले, तो उसके ऑलरेडी बुरे हालात चल रहे हैं, वो मज़ीद अपनी हालात क्यों बिगाड़े. लेकिन दिस माइट हैव अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट कि यू नो मे बी वो इतना नीट एंड टाइडी है, इतना ऑर्गेनाइज बच्चा है, हो सकता है कि उसको थोड़ा सा रिलीज़ मिल जाए, रिलीफ भी मिल सकता है उसको. एंड दिस माइट सर्व अ प्रोटेक्टिव फंक्शन. कैंसर रिस्क इज़ मॉडरेट इंक्रीज्ड है, और इसमें हाई है. क्यों? क्योंकि अल्सरेशन है ना. अल्सरेशन है. उसके अलावा ये बिकॉज ऑफ दिस अल्सरेशन इट रिक्वायर्स रेगुलर स्क्रीनिंग.